Hello students, I am Ruchika from English Academy. In this session, we'll cover class 9th English MCQs from poem 8 on killing a tree. So I have compiled 20 important questions from this poem. I'll give you a question with 4 options and I'll give you 10 seconds to decide the answer. You can write your guesses in the live chat and you can see how well prepared you are in this chapter. Once the time is over, I'll discuss the answer with all of you. Now before beginning the quiz, I have an important announcement that if you have any doubts regarding any topic related to any subject, please mention in the comments and we'll make a video on that. अगर हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है तो हम उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे. Another important thing is that please hit on the subscribe button below this video so that you get notifications regarding the next video uploads on the channel, and also follow us on social media platforms like Facebook, YouTube पे तो आप हमें follow कर ही रहे हैं, Instagram and Twitter also. So through these social media platforms you will get interesting stuff related to English and other announcements related to education. Now we move to our quiz and let us see the questions from the poem on killing a tree. Question number 1 is, what does the word miniature mean? Poem में ये word use हुआ है miniature, इसका मतलब क्या है? Option A tiny, option B mini, option C small, option D all of these. Your 10 seconds have started. Miniature word का मतलब क्या है? Poem में poet कहते हैं miniature boughs which if unchecked will expand again to former size. Time is up. The answer to this will be option D, all of these, because miniature means tiny, mini, small. All these three are correct, so we will say all of these. We move to question number 2. What helps the tree to grow? Option A, earth, option B, air, option C, gardener, option D, none of these. Your time has started, so you have to select the best option as your answer. इनमें से कौन सी चीज ट्री को ग्रो करने में हेल्प करती है? The answer to this will be option A, the earth. The earth helps the tree to grow. The earth feeds the tree. Earth की मदद से ट्री को न्यूट्रिशन मिलता है जिससे वो ट्री ग्रो करता है. Now we see question number 3. Where does the strength of the tree lie? तो ट्री की जो ताकत है वो कहाँ पर है? Option A in the leaves, option B in the fruits, option C in its roots, option D all of these. Your 10 seconds have started, so hurry up and write your guesses in the chat. I know this is very easy and most of you will get the answer correct. The answer to question number 3 is option C. ट्री की जो ताकत है वो उसकी जड़ों में है, उसकी roots में है. We move to question number 4. What kills the tree? Option A, the root has to be snapped. Option B, hack and chop. Option C, cutting the bark. Option D, jab of the knife. Time has started. तो ये सारी टर्म्स पोएट ने पोएम में यूज की हैं और वो कहते हैं कि उनमें से कौन सी चीज है जो फाइनली ट्री को मार सकती है. क्या करना पड़ता है? आंसर विल बी ऑप्शन ए, द रूट हैज टू बी स्नैप्ड. नाउ स्नैप्ड मीन्स कट. तो वो कहते हैं कि हमें उसे जड़ से काटना पड़ता है. जब हम ट्री को जड़ से अलग करते हैं सिर्फ तभी वो मरता है. अगर उसको हैक एंड चॉप कर देंगे यानी कि ऊपर से उसके कुछ ब्रांचेस काट देंगे या उसकी जो मोटा बार्क है उसे काट देंगे या फिर एक चाकू से उस पर हल्का सा कट मार देंगे, इन सब चीज़ों से ट्री नहीं मरता, क्योंकि जहाँ से हम उसे कट करते हैं वहीं से दोबारा से नई छोटी छोटी ब्रांचेस उगने लग जाती हैं और धीरे धीरे वो फिर से बड़े पेड़ बन जाएंगी. जब तक आप उसे रूट से अलग नहीं करते, उसको रूट को डिस्ट्रॉय नहीं करते, तब तक ट्री नहीं मरता. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. व्हाट डू दीज वर्ड्स कन्वे? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, द रूट्स ऑफ द ट्री आर टेकन आउट ऑफ द अर्थ. ऑप्शन बी, द ट्री इज कट एट द बार्क. ऑप्शन सी, द ट्री withers and dries. ऑप्शन डी, all of these. 10 seconds have started. Now this is a very important question. Please think over the options and then decide the answer. The answer to question 5 will be option A. The roots of the tree are taken out of the earth. अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ क्या है ट्री की? उसकी जड़ें. और एक्सपोज का मतलब क्या है? बाहर निकालना. तो पेड़ की जो जड़ें हैं जब उन्हें बाहर निकाला जाता है, कहाँ से बाहर निकाला जाता है? वो धरती के अंदर गड़ी हुई होती हैं. दे आर बरीड इन द अर्थ. तो जब उन्हें धरती से बाहर निकाला जाता है वो एक्सपोज हो जाती हैं, यानी कि पेड़ की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो एक्सपोज हो जाती है.
Now we move to question number 6. What does leprous hide mean? Option A, to hide like a leopard. Option B, leopard skin. Option C, skin of a leper. Option D, none of these. 10 seconds have started. Poem में poet कहते हैं, and out of its leprous hide sprouting leaves. Leprous hide का यहाँ पर क्या मतलब है? आंसर होगा ऑप्शन सी, the skin of a leper. Leper means a person who is suffering from leprosy. तो यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि जैसे जो इंसान लेप्रेसी से सफर कर रहा होता है उसकी स्किन का अपीयरेंस होता है, ऐसे ही वो पेड़ की जो बार्क है उसका अपीयरेंस भी सिमिलर है. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. ट्री कैन बी अ सिंबल ऑफ डैश. तो ट्री को किस चीज का सिंबल कहा जा सकता है? ऑप्शन ए, सोशल इवल्स. ऑप्शन बी, ह्यूमंस. ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. तो इनमें से कौन सी चीज ट्री की सिंबलाइज करती है? तो ट्री इनमें से किस चीज को सिंबलाइज करता है? हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्री इस चीज का सिंबल माना गया है इस पोएम में. आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोशल इवल्स. तो हम ये कह सकते हैं, हम इस पोएम को पढ़कर ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पोएट ट्री से हमें सोशल इवल्स के बारे में बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पेड़ को खत्म करने के लिए हमें उसे रूट से उखाड़ना पड़ता है, रूट से अलग करना पड़ता है, इसी तरह किसी भी सोशल इवल को भी खत्म करने के लिए हमें उसे जड़ से उखाड़ना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. हाउ डू द ट्रीज डाई. ट्री फाइनली कैसे मरता है? ऑप्शन ए, व्हेन दे डोंट गेट वाटर. ऑप्शन बी, व्हेन दे डोंट गेट मैन्योर. ऑप्शन सी, व्हेन देयर रूट्स आर uprooted. ऑप्शन डी, व्हेन वी कट इट विद नाइफ और जैब. 10 seconds have started. Now this is a very easy question because आपको आइडिया तो लग ही गया है कि ट्री कैसे मरता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे. यहाँ पर जैब का मतलब क्या है? एक कट मारना. इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी. जब पेड़ की जड़ें अपरूट कर दी जाती हैं तब वो पेड़ मर जाता है. Very easy. I know most of you must have got the answer correct. Now we move to question number 9. What is the rhyme scheme of this poem? Option A, AABB. Option B, ABCD. Option C, free verse. Option D, none of these. Your 10 seconds have started. Please don't get confused. Be very clear. What all you have studied is correct. तो इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? आपको बताना है क्या कोई राइम स्कीम है या नहीं. आंसर है ऑप्शन सी. दिस पोएम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स, दैट इज देयर इज नो राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम. ये फ्री वर्स में लिखी गई है. नाउ वी मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन. लाइन है द ब्लीडिंग बार्क विल हील. तो इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? ऑप्शन ए, सिंबोलिज्म. ऑप्शन बी, सिमिली. ऑप्शन सी, एलिट्रेशन. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. 10 seconds have started. तो आपको बताना है द ब्लीडिंग बार्क विल हील. इस सेंटेंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर इज ऑप्शन सी, एलिट्रेशन. व्हाट इज एलिट्रेशन? The repetition of a consonant sound at the start of 2 or more consecutive words. यहाँ देखिए, bleeding bark. Both these words are starting with b sound. B sound is a consonant sound. So this is the device of alliteration. Bleeding bark. Now we move to question number 11. How has the tree grown? Option A, by rising out of the earth. Option B, by slowly consuming the earth. Option C, by feeding upon the earth's crust. Option D, all of these. 10 seconds have started. पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में ही पोएट हमें बताते हैं कि पेड़ कैसे ग्रो करता है. इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. पहले तो वो जो पेड़ है वो धरती से ग्रो करता है, राइज करता है, फिर वो धरती को कंज्यूम कर करके बड़ा होता है और धरती की क्रस्ट पर फीड करता है, यानी कि अर्थ की क्रस्ट से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेता है और ग्रो होता है. आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. ऑल दीज 3 आर करेक्ट. वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डज बोज मीन? Option A, trees. Option B, branches. Option C, roots. Option D, none of these. 10 seconds have started. So this word boughs, what does it mean? Now you can pronounce it as bows or bows. Both the pronunciations are correct. Don't worry about that. Answer to this will be option B, branches. Boughs is another word for branches. Let us see question number 13. What another word for branches has been used in the poem? अब पोएम में ब्रांचेस के लिए एक और वर्ड भी यूज हुआ है. एक वर्ड तो हमने देखा बाउज, एक और वर्ड जो यूज हुआ है वो क्या है? ऑप्शंस देखते हैं. विदरिंग, हाइड, ट्विग्स,
नन ऑफ दीज। आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू हो गए हैं, तो आपको बताना है कि ब्रांचेस के लिए एक और वर्ड जो यूज हुआ है वो क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्विग्स। ट्विग्स ऑल्सो मीन्स ब्रांचेस। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 14. What does the line mean? Which if unchecked will expand again to former size? इस लाइन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, if not stopped, the small branches will grow into trees. ऑप्शन बी, the roots will grow deeper. ऑप्शन सी, both A and B. ऑप्शन डी, none of these. 10 सेकेंड शुरू हो गए हैं। अब हम अपनी पोएम में देखते हैं। पोएम में पोएट कहते हैं, The bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. इसका क्या मतलब हुआ? ऑप्शन ए, अगर आप उन छोटे छोटे ब्रांचेस को नहीं रोकेंगे तो वो फिर से ग्रो हो जाएंगी और बड़े ट्रीज बन जाएंगी। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15. How can we pull out the root? ऑप्शन ए विद अ हैंड, ऑप्शन बी विद अ रोप, ऑप्शन सी विद अ पुली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम पेड़ की जड़ को धरती से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में भी हमें पोएट ने 3rd स्टैंजा में बताया है। एंड ही सेज द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड, tied and pulled out. So we will use a rope. Answer will be option B. He says it has to be roped, means उसे रस्सी से बांधना पड़ेगा और फिर उसे कस के बांधकर बाहर खींचना पड़ेगा। Now we move to question number 16. The earth acts as an dash. Option A oven, option B base, option C ship, option D anchor. 10 seconds have started. इसके बारे में भी हमें 3rd स्टैंजा में पता लगता है कि अर्थ किस चीज की तरह एक्ट करती है। The answer will be option D. The earth acts as an anchor. Anchor क्या होता है? एक ऐसी चीज जो फर्मली आपको पकड़ के रखती है। जैसे एक शिप का एंकर होता है, जब उसे अर्थ में गाड़ देते हैं तो शिप उसी जगह पर फर्मली खड़ी हो जाती है। इसी तरह पोएट कह रहे हैं कि पेड़ के लिए जो धरती है वो एक एंकर है। धरती में जब पेड़ की जड़ें जुड़ जाती हैं तो वो कस के उन्हें पकड़ लेती है। We move to question number 17. The root of the tree is dash. हमें blank fill करना है। Let us see the options. Option A black and wet, option B white and wet, option C green and wet, option D black and dry. 10 seconds have started. तो poet हमें क्या कहते हैं in the 3rd stanza? He says, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. So he is referring to the root of the tree. जब वो expose होती है तो वो कैसी होती है? White and wet. So our answer is option B. We move to question number 18. The earth cave refers to dash. Option A a hill cave, option B a cave where the tree is located, option C the pit where the roots lie, option D a tunnel dug in the earth. Time has started. Be very careful while choosing your answer. This is an important question. Earth cave का क्या मतलब है यहाँ पर? पोएट कहते हैं और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। आंसर विल बी ऑप्शन सी। अर्थ केव मीन्स द पिट। अर्थ में जो पिट है, जो खड्डा है जिसमें पेड़ की जड़ें हैं, उसे यहाँ पर अर्थ केव कहा गया है। तो पोएट ये कहते हैं कि हमें इन जड़ों को अर्थ केव में से पुल आउट करना पड़ेगा, यानी कि अर्थ में जो खड्डा है उसमें से उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। We move to the next question. What is the most sensitive part of the tree? Options are option A roots, option B leaves, option C bark, option D twigs. Time has started. Now I think this is a very important and easy question for all of you because you already know about it कि पेड़ का most sensitive part क्या होता है। आंसर रहेगा ऑप्शन A the roots. पेड़ की जो जड़ें हैं वो most sensitive part है। क्यों? बिकॉज वो ही पेड़ को लाइफ देती हैं। रूट से ही पेड़ को न्यूट्रिशन मिलता है और जब तक पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है वो जिंदा है, और जब हम उसकी जड़ें काट देंगे तो पेड़ मर जाएगा, इसीलिए वो उसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट डज स्प्राउटिंग मीन? स्प्राउटिंग वर्ड यूज हुआ है पोएम में। In stanza 1, the poet says, and out of its leprous hide sprouting leaves. Sprouting का मतलब क्या है? Options देखते हैं। Germinating, growing, appearing, all of these 10 seconds have started.
तो आपको बताना है स्प्राउटिंग का मतलब क्या। अब हम सब ने स्प्राउट्स खाए हुए हैं, हम स्प्राउट्स खाते हैं जो पल्सेस से बनते हैं, लेंटिल्स से बनते हैं, ग्राम से बनते हैं। स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज स्प्राउटिंग मीन्स जर्मिनेटिंग, ग्रोइंग, अपीयरिंग. All the three words are correct, so we will say all of these. Basically यहाँ पर स्प्राउटिंग का मतलब है उगना. पोएट ये कह रहे हैं कि पेड़ की जो लेपरस हाइड है, मीन्स लेपर के स्किन से मिलती जुलती जो पेड़ की ब्रांच की कलर है, वहां से लीव्स ग्रो करते हैं. स्प्राउट मीन्स ग्रो करते हैं. Okay, so with this we have covered 20 important MCQs from the poem on killing a tree. Once again I will repeat that if you have any doubts in any topic, please mention in the comment section so that we can make a video on that. And with this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.